And second, The Sound of Music, Part 1, Evelyn Glennie. Listens to sound without hearing it by Deborah Cowley. So now you can see photograph of Deborah Cowley. This is the writer who wrote about Evelyn Glennie. Mean to say, in another word, we can say एवलिन गैलेनी की ऑटोबायोग्राफी लिखने वाली ये राइटर है जिसका नाम है डेबोरा कावले। अब थोड़ा सा हम डेबोरा कावले की पिक हमने देखी, अब हम डेबोरा कावले के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। डेबोरा कावले वाज एन इटावा बेस्ड राइटर एंड ब्रॉडकास्टर। वो एक इटावा बेस्ड राइटर और ब्रॉडकास्टर थी। इज आल्सो द ऑथर ऑफ कैरो। कैरो और कैरो देश है उसकी भी वो एक ऑथर थी, उसने उसके बारे में भी लिखा। नाउ वी आर गोइंग अहेड अबाउट एवलिन गैलेनी। यू कैन सी शी इज एवलिन गैलेनी। ये दिस इज द पिक्चर ऑफ एवलिन गैलेनी। ये एवलिन गैलेनी की पिक्चर है एंड यस यू इट इज रिटन हियर फीलिंग साउंड कि वो साउंड को फील करती है एंड वी हैव टू फील द साउंड विद एवलिन गैलेनी। जस्ट लाइक एवलिन गैलेनी जैसे फील करती है साउंड को, वो सुनती नहीं है, वो फील करती है, तो उसके साथ हम भी करेंगे। Okay, so now we are going ahead, and in this yes you ahead we are going to know more about Evelyn Galani, and we are going to know more about what was the matter, what is the lesson this about. So let's start this one. So here you can see a picture, and in the picture you can see this is a picture of a platform. You can see many peoples are there in this picture. बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं। ये सारे के सारे लोग जो है वो एक स्टेशन के ऊपर हैं, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर ट्रेन। वो वेट कर रहे हैं ट्रेन का। ओके उधर से ये आगे फिर क्या हो रहा है, रस हार क्राउड जोसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड रेलवे sorry train platform. To Rasawa, there was a big crowd on the underground train platform. So this platform is underground platform, and on this platform there is a big crowd. And these peoples are here, and these peoples are going somewhere. They are going to their destinations. That's why they all are here, and they are waiting for train. And everybody is trying to get his or her seats or his or her position in the platform. Okay, on the platform. So on the other side, a slight girl. You can see this is a girl, a slight girl looking younger than her 17 years. Okay, there is a girl, and that girl is a very light girl. There is a very thin and slim girl, and it seems that that girl is not 17 years. Actually, this girl, those girls is describing here. This that girl is 17 years old, but according to his figure, according to his body structure, she is not looking 17 years. She is less than 70. And that girl was nervous yet excited because she felt the vibration of the approaching train. And that girl can feel the vibration of the approaching train. तो व्हाट वी केम टू नो, इसमें हमने देखा, इस पैसेज में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जो पिक्चर है उस पिक्चर में देख रहे हैं हम कि बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं और वो प्लेटफॉर्म पे जो लोग खड़े हुए हैं दे आर गोइंग टू देयर डेस्टिनेशन। वो सभी लोग अपने अपने डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। वहीं पे एक लड़की और भी है, जो लड़की पतली सी लड़की है, जो है तो 17 साल की लेकिन दिखती नहीं है कि वो 17 साल की होगी, तो उससे वो कम की लग रही है। तो वो लड़की थोड़ी सी नर्वस भी है और वो थोड़ी सी एक्साइटेड भी है। वो एक्साइटेड क्यों है, क्योंकि वो आती हुई ट्रेन की वाइब्रेशंस को फील कर सकती है। ओके, बहुत सारे पीपल वहां पे लोग वहां पे खड़े हुए हैं बट वो देख भी नहीं पा रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि ट्रेन भी आ रही है, बट उस लड़की ने बहुत दूर से आती हुई ट्रेन की वाइब्रेशंस को फील कर लिया था कि हाँ अब ट्रेन आ रही है। नेक्स्ट वन इज, yeah, so you can see this photograph, and in this picture, in this photograph, this photograph is about Royal Academy of Music. And where is this academy? This academy is in London. So, what is the relation between that girl or between this academy? So, let's see. We are going to know more about this one. So, it was her first day at the prestigious Royal Academy of Music. So, which building?
Yes, we see the Visha in the picture. In that picture, we can see this was a building of an academy, and that academy belongs to music. And where was that academy? That academy not was but is. Where is this academy? This academy is in London, and that girl was going to this academy. Fine, and this was a very prestigious academy. And this is the first day of the girl. This is the first day of the girl. Who is this girl? We don't know. अभी हमें नहीं पता है कि कौन है वो लड़की जो कहाँ जा रही है। ओके, वो लड़की जो है अभी तक हमने पढ़ा कि वो लड़की है प्लेटफॉर्म पे और वो जा रही थी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में। अब वो कहाँ से है, वो कहाँ नहीं है, अब वो बताया है कि वो लड़की जो है वो स्कॉटलैंड की लड़की है, मीन्स स्कॉटिश गर्ल है। ओके, एंड शी वॉज गोइंग टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, एंड दिस वॉज द फर्स्ट डे ऑफ दैट गर्ल, और ये लड़की का पहला दिन था। But this aspiring musician, aspiring means those a person who is going to be someone, who is going to be someone, yeah, who is going to be a musician. That is called aspiring musicians. Suppose आप हैं, आप बनना चाहते हैं अपने लाइफ में एक आईपीएस ऑफिसर, तो आप एक आस्पिरिंग आस्पिरिंग आईपीएस ऑफिसर। तो वो लड़की जो थी अभी म्यूजिशियन बनी नहीं थी, दैट्स व्हाई शी इज एन आस्पिरिंग म्यूजिशियन। वो एक आस्पिरेशन आस्पिरिंग म्यूजिशियन बनने जा रही थी, आस्पिरिंग म्यूजिशियन थी। तो वो वहां पे खड़ी थी और वो अब रॉयल एकेडमी जा रही थी। So she was profoundly deep, and that girl was totally deep, profoundly, absolutely deep. She was not able to hear anything. वो लड़की को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, वो बिल्कुल पूरी तरह से वो बहरी लड़की। एवलिन एवलिन गेलेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ने जो अपनी हियरिंग गंवाई थी, उसकी जो हियरिंग खत्म हुई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता से हुई थी। ग्रेजुअल मीन थोड़ी थोड़ी करके। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play piano. ओके, तो उसकी माँ को याद है, याद दिलाती है उसकी माँ कि जब एवलिन 8 साल की थी और वो जो पियानो बजाने का वेट कर रही थी, they called her name, तो लोगों ने उसका नाम बताया, and she didn't move, तो वो नहीं हिली। अशो आई suddenly realized she had not heard, तो मैंने उसे सोचा, मुझे महसूस किया कि ये लड़की नहीं सुन सकी। So says Isabel Galani. ये Isabel Galani है। तो who is this Isabel Galani? Isabel Galani is her mother. Isabel Galani की मम्मा है या उसकी मम्मा थी। तो उसकी मम्मा ने देखा कि हम उनको बोल रहे थे और वो बिल्कुल भी नहीं हिले, तब उसे पता चलता है उसकी मम्मा को ब्लड की सुनाई नहीं रहा है। For quite a while, कुछ पल के बाद एवलिन मैनेज्ड, कुछ टाइम के लिए एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग स्टिफनेस। तो एवलिन ने अपनी स्टिफनेस को, अपने बहरेपन को लोगों से छिपा के रखा, अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर से छिपा के रखा कुछ टाइम के लिए। बट जैसे जैसे टाइम आया, he was 11 her marks, ओके, जब वो 11 साल की हुई, हर मार्क्स है, तो उसकी जो हालत थी बहुत बुरी हो गई, और भी बुरी हो गई। Deteriorated mean worsened, और भी बदतर। And her headmistress urged her, और उस स्कूल प्रिंसिपल थे, स्कूल प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स से अर्ज किया, रिक्वेस्ट की। क्या अर्ज में क्या है? रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट किया टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि आप इसे एक अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाओ। Yes, it was then discovered that her hearing was severely impaired. तो जब ये पता लगाया गया कि वो नहीं सुन सकती, वो इम्पेयर्ड हो चुकी है, उसकी जो हियरिंग जो पावर थी वो वीक हो चुकी है, एज अ रिजल्ट डैमेज, और उसकी जो नर्व्स हैं, उसकी जो नर्व्स हैं, नर्व्स ठीक ठीक, वो आहिस्ता आहिस्ता से डैमेज होनी शुरू हो रही। And yes, you up to here we came to know up to here, and next part will be with the next video. Thank you. Have a nice day, pleasant day.